Now, today we should focus on how to deal with descriptive statistics to different parametric tests. Screen is visible, everyone? Screen is visible? Yes, sir. Okay, thank you. Now, start from the last topic, that how to check the normality. Connect with the last topic. What is normality? Normality is the most important part of your analytical purpose, most important part of the statistical technique, because it is based on your testings. Because once your data is normal, you should apply the parametric test, and if your data is not normal, then you have to use the non-parametric test. Then parametric and non-parametric test basically based on normality and non-normality. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप टेस्ट का डेटा का नॉर्मल और नॉन नॉर्मल के थ्रू आप डेटा चेक कर लें कि योर डेटा फॉलो नॉर्मल और नॉट. तो कल मैंने बताया था कि there are 3 different things. First, you have to check the normality through skewness and kurtosis. There is no thumb rule. You have to check if your values of skewness and kurtosis lie between -2 to +2. You can use it as a normal. If you draw the histogram with normal curve, it is also useful, but sometimes it is difficult to say through the chart or through the values. So sometimes they prefer, please apply the sometimes reviewer in the research said that please apply the test for normality. So we should focus on normality test with plots, that is Shaprowicz and केस टेस्ट एंड Shaprowicz टेस्ट. किस तरह हम चेक करेंगे Shaprowicz टेस्ट और केस टेस्ट को, इस बारे में हमने कल डिस्कस किया था. नेक्स्ट थिंग हमारा है डेटा एनालिसिस. बेसिकली बेस्ड होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स based with mean, median, range, SD, variance, and quartiles and all that. And also it is focused on some graphical representation based on histogram, bar chart, pie chart, scatter diagram. So these are the charts are most important because these charts or diagrams, they communicate information visually, so that is most important. And in inferential statistics, it is based on 2 parts, estimation and hypothesis testing. So first thing is how to check the descriptive statistics of your data set. How to check the what is the mean of your data in which you are interested, what is the variance, what is the range. So how can we check the descriptive statistics of our data set? So first thing is go to analyze, go to descriptive statistics and click on descriptive and move all variables into the variable window and click OK. Now, how to deal with, just we should look on the SPSS part, SPSS table. Now slide is visible, and I think this is the last question. I have already discussed yesterday that this, suppose this is my last topic, this is my this is my example which I have discussed yesterday. Based on person, this is the gender of a person, religion, age, monthly income, health score, personality score, activity score. So these are the some scores on the based of questionnaire. So how to deal with descriptive statistics? हम कैसे descriptive statistics in data का find करेंगे? Just click on analyze. First you should go to analyze. Analyze पे गए, then click on descriptive. Click on descriptive. Descriptive पे हम put करेंगे, click करेंगे. Now go to again. We have different options are there, and again we should focus on just click on descriptive. तो descriptive पे click कर देंगे. Again कैसे हम पाएंगे? Go to analyze, go to descriptive, and then again go to descriptive. Descriptive पे चले गए. Suppose I am interested in descriptives of health score and personality score. I am interested in
the descriptive statistics of health score and personality score. What is the brief structure descriptive of these two scores? Go to options. I am interested in mean, I am interested in sum, I am interested in SD, standard deviation, and also I am interested in skewness and kurtosis. Just click on continue. Click kar denge, go to okay, and you get the output. Go to window and click on output. Output पे गए हम, और आउटपुट में हमें जो वैल्यू शो हो रही है, देखिए आउटपुट पे जो हमें वैल्यू शो हो रही है, it is see, it is n is health score 25 values are there and minimum value is 14.21. sum कितना है 1171.75. standard deviation health score का कितना है 47.19 and skewness है 0.627. kurtosis 1.896. so this is the brief statistics of the health score and personality score, and whatever be your variable in which you are interested, just click on it. Suppose just go to analyze, go to descriptive, again go to descriptive and put the variable in which you are interested and just click on it, and comes in the variable window, and again click option and click on the variables in which, click on the descriptives in which you are interested. Click on kurtosis, skewness, click on OK and get output of your result in which you are interested. तो हमें इस तरह से descriptive statistics इस तरह से मिल सकता है. अब इसके बाद एक चीज arise होती है, one thing is important. Suppose you are interested in the health score of male and female data separately. अब आपको चाहिए कि मेल और फीमेल का अगर हमें डेटा सेपरेटली मिल जाए हेल्थ स्कोर का, तो वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे. Then go to, first you have to go your original data where you have entered. Suppose this is your original file of SPSS. First thing you have to do this split file. कैसे split करेंगे? Go to data, data पे click करेंगे, then go to split file. Split file पे गए and you are interested in organize output by gender of a person. तो आप इसमें तीन options are there, three options are there. Analyze all cases, do not create groups, compare groups and organize output by groups. तो हमें जो output चाहिए वो based on female और female चाहिए according to health score. तो हमने क्या किया, just click on gender because हम gender में interested हैं कि इसके basis पर हमारा output आए. तो हमने कर दिया click on organize output by groups and then click on gender of a person, then okay. अब जो हमारा output है, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है split file separated by gender. Everyone seen it? आप सभी को दिख रहा है, ये आउटपुट दिख रहा है, split file separated by gender. split file separated by gender. अब इसके बाद हम जो फाइंड आउट करेंगे कि अब हमें आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंग टू जेंडर. देन अगेन गो टू योर डेटा, क्लिक ऑन एनालाइज, go to descriptive statistics and again go to click on descriptive statistics. You are interested in male and female separately health scores, descriptive statistics. Just click on it and continue, click. Then see gender of a person. This is the descriptive statistics of what? Male. See the bottom of the table. This is for male, gender of a person for male. यानी ये 14 मेल हैं आपके हेल्थ स्कोर में और आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिसीव हुई आउटपुट. एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन में 11 फीमेल एंड यू गेट द दिस स्टैटिस्टिक्स. सो मेल एंड फीमेल get this statistics for male and female separately for health score. तो इस तरह से हमें ये इस तरह से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा. जब आपको ये आउटपुट मिल जाए, then again you want to, because your original file is splitted into according to gender, then how can you remove it in original file? Again go to data पे जाइए, then again go to split file and go to reset your data and then again okay. अब देखिए यहाँ लिख के आ रहा है here it is split file of, यानी now you have get the original file that is in the initial stage.
और अगर आप इसको आउटपुट बाय ग्रुप कर देंगे, यू कैन यूज इट मंथली इनकम एज ए आउटपुट, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू मंथली इनकम भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल सकता है। नाउ वी हैव next part is next thing is I have already done this normality, plots, case test, and now we are here descriptive statistics। और ये हमने बताया कि किस तरह आप descriptive statistics को find कर सकते हैं। The next thing is how to compute new variable, how to compute new variable। नया variable आप कैसे find out करेंगे? Suppose you are interested to obtain the new variable, आपको कोई एक नया variable generate करना है by adding 2 or 3 sections or 2 different questionnaires, इनको question 1 और question 2 को आपको add करना है उनके डेटा को, तो आप किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल को? तो आपको क्या करना है? क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, देन गो टू कंप्यूट, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, देन गो टू कंप्यूट। द सेकंड स्टेप इज टाइप द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट यू विश टू क्रिएट, यानी आपको टारगेट वेरिएबल में कोई नेमिंग करनी है जिस नेम से आपको नया वेरिएबल चाहिए। थर्ड स्टेप इज टाइप न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, आपको जिस तरह ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राइट कीजिए, देन क्लिक ओके। सो and the same thing is you have to use it as the earlier, जैसे आप descriptive चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। तो किस तरह हम इसको परफॉर्म करेंगे? Can we check it as a how to transform any variable? Suppose go to data, this is your original file, go to data and again define go to transform, then go to compute variables। कैसे आपको नया वेरिएबल मिलेगा? गो टू ट्रांसफॉर्म, गो टू कंप्यूट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल में किस तरह मिलेगा? यानी सपोज आप इंटरेस्टेड हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनालिटी स्कोर एंड एक्टिविटी स्कोर, इन दोनों को आप ऐड करना चाहते हैं। यू आर एडिंग दीज टू वेरिएबल, पर्सनालिटी स्कोर एंड एक्टिविटी स्कोर, एंड यू वांट टू ऐड दीज टू वैल्यूज एंड मेक न्यू, सो न्यू स्कोर। सपोज यू हैव नेम इट न्यू स्कोर, आपने इसको न्यू स्कोर नेम कर दिया, न्यू स्कोर। और किसको किस तरह रखना है हमें? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में सबसे पहले हमने रखा पर्सनालिटी स्कोर, इसको हमने क्लिक किया पीएस, आगे हमारे पास इसको हमें ऐड करना है, यानी पीएस प्लस एक्टिविटी स्कोर, इसको हमने किया। पीएस और पर्सनालिटी स्कोर को मिला करके एक नया वेरिएबल जनरेट करना है, तो हम इसको करेंगे पीएस प्लस एएस एंड क्लिक ओके। अब आप देखेंगे कि जो हमारा जो डेटा सेट है ओरिजिनल, उसमें एक नया स्कोर जनरेट हो गया, दैट इज योर न्यू स्कोर। यानी जो अभी हमने नया स्कोर जनरेट किया विच इज बेस्ड ऑन पर्सनालिटी स्कोर एंड हेल्थ स्कोर, एक्टिविटी स्कोर। पर्सनालिटी स्कोर इज 15 एंड एक्टिविटी स्कोर इज 4, एंड यू वांट टू क्रिएट न्यू स्कोर दैट इज 14, 15 प्लस 4। तो ये आपका सारा न्यू एक वेरिएबल जनरेट हो गया बेस्ड ऑन न्यू स्कोर। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है या कोई भी ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करनी है और नया वेरिएबल जनरेट करना है, देन यूज द कोड ट्रांसफॉर्म, क्लिक ऑन कंप्यूट वेरिएबल एंड क्लिक ऑन इट एज पर योर नीड, व्हाटएवर बी योर वेरिएबल इंक्लूडेड इन इट। तो आप इस तरह इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है नेक्स्ट थिंग इज most important part is hypothesis testing। Hypothesis testing, hypothesis testing most important part because it is an inferential part, or there are two types of hypothesis। Hypothesis is what? Hypothesis is the some statement about the population, some statement passes by the some passing statement regarding the population। तो जो भी आप एक statement दे रहे हैं regarding the population, that will be your hypothesis। And there are two types of hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis। And what is null hypothesis? The hypothesis to be tested, यानी जिसे हमें चेक करना है। null hypothesis क्या होती है? What is null hypothesis? Null hypothesis is hypothesis to be tested, जिसको हम कहते हैं typically there is no difference or effect or relationship। और alternate hypothesis also known as
रिसर्च हाइपोथेसिस, यानी जिसे आप रिसर्च मैटर ऑफ रिसर्च है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसको आप बेसिकली, इसीलिए हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके बेसिस पर हम डेटा शो करते हैं, एविडेंस शो करते हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस जो होगी, इसी को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी रिसर्च का, क्योंकि जनरली वी फाइंड दैट many times researcher make their questionnaires and perform the collect all the data, and after that they make the objectives, and sometimes they make the objective and sometimes they not, and then they go to analysis, and they said that sometimes the analyst asks what is your objective, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं बता पाते हैं। तो एनालिसिस, इसीलिए ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होगा आपका, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो ही आप प्रॉपर क्वेश्चनायर फ्रेम कर पाएंगे, और जब आप प्रॉपर क्वेश्चनायर फ्रेम कर पाएंगे तभी आपका रिजल्ट भी प्रिसाइज्ड आएगा, बेटर आएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, और इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाते हैं, रिपीटिशन हो जाता है, और प्रॉपर टेक्निक क्या अप्लाई करनी है इसका भी पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा कौन सी टेक्निक लगेगी इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द क्वेश्चनायर ऑब्जेक्टिव, देन फ्रेम द क्वेश्चनायर, देन कलेक्ट द डेटा। तो पहला प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, two hypotheses are there. Null hypothesis matlab there is no significant the hypothesis to be tested, or alternate hypothesis basically research hypothesis, it is hypothesis जिसको आपको चेक करना है, यानी जिसके थ्रू आप जो क्लेम कर रहे हैं, यानी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो बेसिकली जो आप जिसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो रिसर्च हाइपोथेसिस आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। और नल हाइपोथेसिस मींस देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप, और मींस देयर इज नो डिफरेंस या रिलेशनशिप इसलिए कहते हैं कि सपोज कह देते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसलिए कहते हैं नल हाइपोथेसिस में, that means you are unbiased in it, means आपने starting में ही अगर किसी का फेवर ले लिया, that means it is difficult to get the precise answer, precise result, because starting में you should be unbiased. So start from the unbiased means null hypothesis, there is no significant. Start from the unbiasedness and collect evidence, apply statistics and get the result on the basis of evidence. So objective or hypothesis is very important part of the inferential statistics. Next thing is how to apply t-test. t-test हम किस तरह अप्लाई करेंगे? Suppose when we apply t-test, t-test के लिए सबसे important part है कि your data must be normal. तो सबसे पहले t-test जो होता है हमारा सिंगल मीन के लिए, t-test for single mean, अगर हमारे पास t-test अगर हमें अप्लाई करना है किसी सिंगल, सपोज ऑन एन एवरेज हेल्थ स्कोर इज 55, और आपको इसे चेक करना है कि जो गिवन डेटा है ऑन एन एवरेज हेल्थ स्कोर 55 है या नहीं है। ये हम क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल पर्सन का ऑन एन एवरेज हेल्थ स्कोर 55, लेकिन क्या जो हम कह रहे हैं स्टेटमेंट इट इज राइट और रॉन्ग, तो हमें टेस्ट फॉर सिंगल मीन इस कंडीशन में यूज होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर अप्लाइंग द टी टेस्ट, बिकॉज इट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, देन यू हैव टू चेक द डेटा इज नॉर्मल और नॉट। तो सबसे पहले आप डेटा नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। तो सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन है, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज सपोज टू बी 55, यानी ऑन द गिवन डेटा, जो अभी मैं डेटा शो कर रहा हूं आपको, ऑन एन एवरेज हेल्थ स्कोर नॉर्मल पर्सन का सपोज टू बी 55, हेल्थ स्कोर of a 12 person from community whose living condition are supposed to be living condition are suspected of causing poor health score are recorded in health data. Do the data justify the suspicions regarding the health score of the community? Use level of significance alpha is 0.05. Alpha 0.05 given है, आप 5% alpha 5% level of significance ले रखा है, कुछ लोग 1% लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट SPSS 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसीडर करता है। तो इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस सबसे पहले फ्रेम करी हमने
एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55, यानी हमने कहा कि नहीं, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन 55 है। और नल हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं कि नहीं, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन 55, यानी ये जो स्टेटमेंट है अल्टरनेट HA, समटाइम्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय HA और H1, तो दोनों नोटेशंस यूज हो सकते हैं। तो एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन 55, ये मैटर हमें चेक करना है, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी शुड चेक द डेटा इज नॉर्मल और नॉट, कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ स्कोर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज चेक वेदर हेल्थ स्कोर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। सेकेंड, एनालाइज, go to compare means, select one sample t-test and move health score into the test variable window and enter 55 and click OK. Now come to the SPSS table, SPSS data sheet। SPSS शीट देखिए, ये SPSS शीट आ गई हमारी। अब हम इसको सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है कि नहीं। कौन सा डेटा, हेल्थ स्कोर का, बिकॉज योर research variable is health score. Go to data, sorry, go to analyze, go to descriptive, then go to explore for testing the data, your data health score follow normal or not. You are interested in health score, click on health score. You are interested in testing, yani you are interested in normality plot with टेस्ट के थ्रू आप पता करना चाहते हैं, तो then go to analyze, go to descriptive, go to explore, then you get this window. You are interested in health score, it is comes in the category of dependent list, click on plot. Plot में आपने किया, unclick the stem and leaf because it is not your important part. You are interested in normality plot with test, click on it, click continue, click OK. अब देखिए अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए नॉर्मेलिटी टेस्ट विद प्लॉट्स। मैंने आपको कल क्या बताया था कि केएस टेस्ट, कोलमोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट एंड शेप्रोविक टेस्ट, these two tests are used for normality according to the small sample and large sample। तो यहाँ दोनों केसेस में ये जो SIG वैल्यू आ रही है, SIG वैल्यू सिग यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये दे रहा है SIG वैल्यू, दैट इज योर P वैल्यू। तो अगर P वैल्यू 0.05 से, इस केस में आपके पास जो हाइपोथेसिस होगी तो H0 है, योर डेटा फॉलो नॉर्मल, और अल्टरनेट है योर डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मलिटी। तो इस केस में P वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0.05 है, P वैल्यू इज लेस देन P value is greater than alpha. Alpha is given in your question, that is 0.05. Then here 0.200 and it is greater than alpha 0.05. So in this case we can say that we accept our null hypothesis. तो हमारी null hypothesis को हम accept कर लेंगे। इसका मतलब है कि हमारा डेटा null hypothesis H0 को हम accept कर रहे हैं, और H0 क्या थी, H0 is data follow normal। तो हेल्थ स्कोर जब हम देख रहे हैं तो हमारा जो हेल्थ स्कोर है नॉर्मल फॉलो कर रहा है। अगर ये नॉर्मल फॉलो नहीं करता तो हम टी टेस्ट नहीं अप्लाई कर पाते, टी टेस्ट हम नहीं यूज कर पाते, तो तब हम यूज करते नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो वी शुड चेक द नॉर्मेलिटी बिफोर अप्लाइंग द पैरामेट्रिक टेस्ट, दैट इज टी टेस्ट एंड ओवर टेस्ट एंड ऑल दैट। नाउ after that, when data follow normal, then go to analyze, check the further part, go to analyze, then go to compare means, go to analyze, go to compare means, then go to one sample t test because data is based on one sample t test, click on it। अब आप किस में इंटरेस्टेड है, यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ स्कोर। तो टेस्टिंग वेरिएबल क्या है आपका, हेल्थ स्कोर, जिसको आपको चेक करना है। और टेस्ट वैल्यू क्या है, टेस्ट वैल्यू इज 55 बिकॉज आप कह रहे हैं कि जो एवरेज हेल्थ स्कोर है क्या वो 55 है, इसको आप चेक कर रहे हैं। तो पुट इट टेस्ट वैल्यू इन 55 here, पुट टेस्ट वैल्यू 55 here, क्लिक ओके। अब आप ओके कर दीजिए। अब देखिए दिस इज द वन सैंपल टी टेस्ट। अब आप देख सकते हैं वन सैंपल टी टेस्ट आ रहा है। आप बता सकते हैं कि टू टेल्ड है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0.021, 0.021 आ रही है, तो यानी टू टेल्ड डेटा है। टू टेल्ड समझ रहे हैं इसको। अगर आपकी हाइपोथेसिस हमारे इस केस में आप देख सकते हैं
इस केस में हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, कैन एनीवन टेल मी द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज टू टेल्ड और वन टेल्ड in this question? It is two tailed or one tailed in this question? CHA alternate hypothesis. अब यहां पर जो एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन 55 है, मींस अगर आपका नॉट इक्वल टू की अगर टाइप की हाइपोथेसिस होगी, मींस अगर होता कि एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज नॉट इक्वल टू 55, तो नॉट इक्वल टू में आप क्लियर नहीं होते, इट इज लेस देन और ग्रेटर देन, तब होता है हमारा टू टेल्ड। और अगर होता है एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज लेस देन और ग्रेटर देन, इस तरह की हाइपोथेसिस है अल्टरनेट, तो हमारी वन टेल्ड हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ इस केस में हमारी वन टेल्ड हाइपोथेसिस है, इसीलिए, लेकिन डेटा जो हमें दे रहा है आउटपुट वो टू टेल्ड है। तो हम क्या करेंगे, टू टेल्ड को वन टेल्ड बनाने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और जब 2 से डिवाइड करेंगे, जस्ट शेयर द आउटपुट, ये p वैल्यू 0.021, अगर ये सपोज करिए p वैल्यू 0.0, सपोज टू टेल्ड होती अगर हमारी हाइपोथेसिस, तब एक्सेप्ट होती है रिजेक्ट? वी शुड एक्सेप्ट आवर हाइपोथेसिस और नॉट, बिकॉज 0.021 ग्रेटर लेस देन 0.05 है, तो एक्सेप्ट होगी हाइपोथेसिस या रिजेक्ट होगी? सो इफ हाइपोथेसिस p वैल्यू, दिस इज सिग्निफिकेंट वैल्यू इज p वैल्यू, अगर p वैल्यू 0.021 है, अगर p वैल्यू, इफ p वैल्यू इज लेस देन 0.05, अगर अल्फा 0.05 ग्रेटर है p वैल्यू से, देन वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस है। वो बेसिकली हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हाइपोथेसिस, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन? यस सर। ओके, हियर p वैल्यू अभी मैंने आपको शो की, p वैल्यू दैट इज 0.021 which is less than 0.05, and because अल्फा देखिए आपकी यहाँ अल्फा कितनी दे रखी है, अल्फा इज 0.05, अगर p वैल्यू लेस देन 0.05 है, then we reject our null hypothesis। इसीलिए हम कहते हैं p वैल्यू इज लो, null has to go। तो यानी p वैल्यू लेस देन 0.05 है, then we reject our null hypothesis। और रिजेक्ट किसको कर रहे हैं, रिजेक्ट आवर null hypothesis, इस स्टेटमेंट को आपने रिजेक्ट कर दिया। एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55, आपने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और जो दूसरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हम टेस्ट फॉर सिंगल मीन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है हमारा टी टेस्ट फॉर टू सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और टू सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, बोथ थिंग्स आर सेम। तो टू सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम किस तरह अप्लाई करेंगे? सपोज इफ यू हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड यू वांट टू कंपेयर ग्रुप्स ऑन अ particular variable. Suppose if you have two classes and both classes have the lectures based on statistics, and you want to check the class 1 performance of statistics in class 1 group, or second group is class 2 and you want to check the score of statistics on class 2, then अब दो ग्रुप्स हैं डिफरेंट, तब यहां पर हम अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। जैसे सपोज करिए, with reference to our health data we wish to test is there any significant difference between mean health score of male and female। यानी अब हमारे पास we have two different population, one is male and other is female, and two different groups, male and female group, and they want to check is there any significant difference between mean health score of male and female, two different population with a particular variable, that is variable will be your health score।
हेल्थ स्कोर चेक करना है कि मेल ग्रुप का और फीमेल ग्रुप का जो हेल्थ स्कोर है मीन, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो नल हाइपोथेसिस हो गई, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। तो यानी दो हाइपोथेसिस बन गई, एच नॉट हो गई कि नहीं दोनों में कोई फर्क नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। और अल्टरनेट कह रहे हैं नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यू शुड चेक दैट योर डेटा फॉलो नॉर्मेलिटी अकॉर्डिंग टू हेल्थ स्कोर और नॉट। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया, सबसे पहले अभी चेक करके मैंने बताया था मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी कैसे चेक करेंगे। तो हेल्थ स्कोर अगर हम चेक करें कि हेल्थ स्कोर, सिंपली हेल्थ स्कोर की डेटा नॉर्मेलिटी मेल और फीमेल कैसे सेपरेट करेंगे, गो टू डेटा, गो टू स्प्लिट फाइल, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय जेंडर ऑफ अ पर्सन, वहां क्लिक कर देंगे, देन गो टू ओके। तो हमें मिल जाएगा स्प्लिट फाइल बेस्ड ऑन जेंडर। देन गो टू हेल्थ स्कोर, क्लिक ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से क्लिक करेंगे, देन गो टू एक्सप्लोर एंड अप्लाई प्लॉट्स, नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। और आप चेक करेंगे अगर केएस वैल्यू या शेप्रोविक्स वैल्यू, अगर ये जो पी वैल्यू है इनकी सिग्निफिकेंट एसआईजी वैल्यू जो लिखी होगी दैट इज योर पी वैल्यू, अगर ये पी वैल्यू ग्रेटर आ रही है 0.05 से, तब हम कहेंगे डेटा फॉलो नॉर्मल, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे टी टेस्ट, अदरवाइज हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या करना है, अभी मैंने बताया गो टू डेटा स्प्लिट फाइल, ये मैं बता चुका हूं, गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स, अप्लाई इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, मूव हेल्थ स्कोर इनटू द टेस्ट वेरिएबल विंडो, डिफाइन ग्रुप, ग्रुप 1 क्या था, मेल, आपने शो कर रखा है, ग्रुप 2 फॉर फीमेल, एंड क्लिक ओके। किस तरह हम इसको देखेंगे, लेट मी चेक, देखिए how to deal with independent sample t-test, click on analyze, go to compare mean। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन, मीन, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड सैंपल, वन वे एनोवा, और अभी मैंने आपको वन सैंपल टी टेस्ट बताया। अब इसी कंपेयर मीन में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और हमने देखा था कि हेल्थ स्कोर कल भी हमने शो किया था कि डेटा फॉलो कर रहा है नॉर्मल, तो अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, what is our testing variable, that is health score, health score हमारा टेस्ट वेरिएबल, हमने इसमें क्लिक कर दिया। ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है, what is our grouping variable, जेंडर ऑफ अ पर्सन। क्यों, जेंडर ऑफ अ पर्सन हमने क्या बताया था, 1 क्या था मेल और 2 क्या था फीमेल। अब हम ओके कर देंगे, कंटिन्यू, क्लिक ऑन ऑप्शन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, दैट मींस 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये 95% बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है। क्लिक ओके। अब देखिए ब्रीफ स्टैटिस्टिक्स आ गई मेल और फीमेल का, 14 मेल है 11 फीमेल है हेल्थ स्कोर में। अब देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवेने टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, यानी हेल्थ स्कोर के बाद अगर आप देख रहे हैं इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम, यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब लेवेने टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस में जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 0.05 है। आप देखिए सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ रही है 0.219, अब 0.219 विच इज ग्रेटर देन 0.05, देन वी कैन इजिली अप्लाई द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यानी फर्स्ट यू हैव टू चेक द नॉर्मेलिटी, अगर नॉर्मेलिटी है तब आप चेक करेंगे लेवेने टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस सिग्निफिकेंट वैल्यू, अगर ये पी वैल्यू 0.219 ग्रेटर आ रही है तभी आप फर्दर टेस्ट करिए, अगर नहीं आ रही है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में ये भी एक पार्ट है। अगर देखिए यहाँ पर 0.219 आई विच इज ग्रेटर देन 0.05, तो हम कह सकते हैं कि variances equal variances assumed, the variances are assumed to be equal, so here significant p value is 0.219 which is greater than 0.05,
so we accept that there is a equality in the variances. अब हम फर्दर चेक कर सकते हैं अदर रिजल्ट कि टी टेस्ट हमारा क्या आ रहा है। अब हम देख रहे हैं इसमें टू टेल्ड, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है 0.944, चेक 0.944, दिस इज द पी वैल्यू। आप बता सकते हैं इस केस में पी वैल्यू 0.944 है, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और नॉट? 0.944, 0.944 हाइपोथेसिस हमारी इस केस में एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? 0.944, दिस इज योर पी वैल्यू। Rejected. रिजेक्ट, रिजेक्ट, व्हाई रिजेक्ट? रिजेक्ट तब होगी जब पी वैल्यू ग्रेटर हो लेस देन होगी 0.05 से। अगर 0.05 जो अल्फा है आपका, p value is less than alpha, then we reject our null hypothesis. If p value is greater than alpha, then we accept our null hypothesis. यहाँ 0.944 आ रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस। यानी जो नल हाइपोथेसिस हमने क्या फ्रेम की थी 0.944, ये ग्रेटर आ रहा है अल्फा से, यानी अल्फा था आपका 0.05। अब देखिए अगर हम शेयर करें स्क्रीन आपकी पीपीटी, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस थी हमारी वो क्या थी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। यानी हम इस स्टेटमेंट को जो पी वैल्यू है ग्रेटर आ रही है अल्फा से, यानी नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है। हम इस स्टेटमेंट को एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। एवरेज हेल्थ स्कोर के रिकॉर्डिंग जो दो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की, उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर रिजेक्ट हो जाती तब हम कहते कि हाँ दोनों में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशंस रिगार्डिंग दी हेल्थ स्कोर। तो सबसे पहला इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में नॉर्मेलिटी चेक करिए, देन अगर नॉर्मल फॉलो कर रहा है देन चेक द लेवेनिट टेस्ट, अगर वो भी पास कर दिया एक्सेप्ट हो रही है तब आप टी टेस्ट आप वैल्यू पी वैल्यू चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट कब यूज कर सकते हैं? पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड जनरली, दिस इज यूज्ड फॉर प्री एंड समटाइम इट इज कॉल्ड प्री एंड पोस्ट टेस्ट। प्री एंड पोस्ट टेस्ट का मतलब है कि ऑन द सेम पॉपुलेशन पे प्री एंड पोस्ट आप अप्लाई कीजिए। सपोज यू वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन ऑन द कोरोना पेशेंट्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यू हैव 20 पेशेंट्स आर देयर, कोरोना पेशेंट्स, एंड चेक द हेल्थ कंडीशन before applying the corona vaccine. You have noted down, and after that you can apply the corona vaccines, say Covaxin, Covishield, whatever be, you can apply on the same sample, 20 samples on the COVID patient. तो अब आप उसकी रीडिंग नोट कर दीजिए after applying the that Covaxins vaccines on the corona patient and check the health score after that. तो प्री और पोस्ट यानी सेम पॉपुलेशन पे प्री और पोस्ट टेस्ट अप्लाई करना। हेल्थ स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे सपोज एग्जांपल ले लें हम कि सपोज प्लीज रेफर टू द हेल्थ स्कोर डेटा व्हेन इट सीम्स दैट पुअर लिविंग कंडीशन इज वन ऑफ द कॉज फॉर पुअर हेल्थ स्कोर. Better living condition are provided to the people of locality, and after a month again their health score are recorded. Now we want to test, is there any improvement in their health after providing the better living condition? यानी कह रहे हैं कि हेल्थ स्कोर अभी पुअर लिविंग कंडीशंस में वो 20 सपोज करिए ये 25 लोग पुअर लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं, ये 25 लोग, फिर हमने उनका डेटा नोट कर लिया हेल्थ स्कोर का। अब हमने क्या किया, now on the same population 25% we provide that these 25% the better living condition, good living condition. अब उनकी हेल्थ स्कोर नोट करें, यानी इस केस में आपका जो सैंपल है 25 वो चेंज नहीं हो रहे हैं, आपने दोनों हेल्थ स्कोर नोट की ऑन द सेम सैंपल। इसीलिए यहाँ पेयर टी टेस्ट में सैंपल्स आर डिपेंडेंट,
इसीलिए हम कहते हैं सैंपल डिपेंडेंट होते हैं पेयर टी टेस्ट। तो इस केस में हमारी हाइपोथेसिस हो गई देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन हेल्थ स्कोर बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन। यानी नल हाइपोथेसिस हो गई कि नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप चाहे हेल्थ स्कोर पहले और बाद में, यानी लिविंग कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर बेटर लिविंग कंडीशन, कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन कह रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, यानी है, डिफरेंस है। तो अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड, इज देयर एनी चेंजेस और नॉट। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि टी टेस्ट तभी अप्लाई कर पाएंगे आप जब डेटा आपका नॉर्मल फॉलो करेगा। तो हेल्थ स्कोर आपका जो है हेल्थ स्कोर वो टेस्टिंग वेरिएबल है, तो हेल्थ स्कोर का नॉर्मेलिटी चेक कर लीजिए, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि डेटा नॉर्मल फॉलो कर रहा है हेल्थ स्कोर, तो हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं। कैसे चेक करेंगे नॉर्मेलिटी, फिर मैं बता देता हूँ। गो टू एनालाइज, go to descriptive, then go to explore, then click on plot, और जो टेस्टिंग वेरिएबल हेल्थ स्कोर को टेस्ट वेरिएबल में ले आइए, क्लिक ऑन प्लॉट, और फिर जब क्लिक करेंगे प्लॉट में तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट को आप अनक्लिक कर दीजिए, और आप किसको क्लिक करेंगे, नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट। जब इसको क्लिक करेंगे, क्लिक ओके, तब आपको आ जाएगा नॉर्मेलिटी प्लॉट, जहां पर आप देखेंगे केएस टेस्ट और शेप्रोविक्स टेस्ट। और अगर ये इनकी पी वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा आ रही है, तब हम कहेंगे डेटा नॉर्मल। तो किस तरह चेक करेंगे, गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स एंड अप्लाई पेयर टी टेस्ट, मूव हेल्थ स्कोर अंडर वेरिएबल 1 एंड हेल्थ स्कोर 1 अंडर वेरिएबल 2। यानी वेरिएबल हेल्थ स्कोर जब आप पुअर लिविंग कंडीशन में रहते थे, वो 25 लोग जो हमारे पास डेटा है, और फिर हमने जब उनको अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड की, तो उनका हेल्थ स्कोर नोट किया, जो डिनोट कर रहा है हेल्थ स्कोर 1 से, वेरिएबल 2 से, देन क्लिक ओके। So now come to the come to the SPSS file, go to analyze, go to, now we are interested, let's see health score, that is before health score after providing living condition। पहले क्या था health score, बाद में ये health score है। तो 25 सैंपल सेम है, इसीलिए हम पेयर टी टेस्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। go to analyze, go to compare means, go to analyze, go to compare means, here the option is paired sample t test, क्लिक कर दिया। हेल्थ स्कोर आपका फर्स्ट है वेरिएबल, और फिर हेल्थ स्कोर, न्यू हेल्थ स्कोर आपका सेकंड वेरिएबल है। ऑप्शन में देखें 95 बाय डिफॉल्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखता है, क्लिक ओके। अब हम जब ओके किया हमने, तो देखा हेल्थ स्कोर कितना आ रहा है हमारा, हेल्थ स्कोर इज हेल्थ स्कोर माइनस न्यू हेल्थ स्कोर। अब इसमें देखिए पी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 0.028। अब बताइए हमारी 0.028 आ रही है, हेल्थ स्कोर टू टेल्ड है, क्योंकि इसमें कह रहा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सॉरी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब पुअर लिविंग कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर देयर इज अ चेंजेस इन द लिविंग कंडीशन, और हेल्थ स्कोर में फर्क आया है। तो यहाँ पे पी वैल्यू आ रही है 0.028। आप बता सकते हैं कि एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट, एनीवन? इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट? पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में। इन दिस केस आवर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन 0.028। अब जब रिजेक्ट हो गई नल हाइपोथेसिस, दैट मींस आवर स्टेटमेंट, this statement you have to reject this statement, जिसको आप कह रहे थे कि नहीं कोई फर्क नहीं है बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन, you have reject this statement and you accept this one, means there is a significant difference after providing better living condition। तो पेयर टी टेस्ट में एक चीज याद रखिए कि जो सैंपल होंगे वो सेम होंगे आपके, इसलिए इसको सैंपल डिपेंडेंट होता है। इसमें जो पहले कंडीशन में जितने सैंपल होंगे उतने ही बाद में भी उतने ही सैंपल होंगे, वही सैंपल, सेम सैंपल्स आर पार्टिसिपेटेड इनटू बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट। और बिफोर एंड आफ्टर इसीलिए कह रहे हैं पॉपुलेशन आपकी सेम रहेगी, और जो सैंपल होंगे आपके वो जो फर्स्ट पार्ट में बिफोर में जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं वही सेकंड में भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है हमारा? कोरिलेशन
Basically, correlation measures how variables are related, or the correlation coefficient is used to quantify the strength of the linear relationship between two variables. Basically, correlation measure करता है कि strength and direction of the variable, strength और direction बताता है दो variables के बीच में. दो variables, suppose height और weight. Height is x and weight is y. तो height 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका हाइट हमने ले लिया, मेजर कर लिया, और उनका वेट. तो अब हमें पता करना, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट और नॉट. तो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे इसको? हमें फाइंड आउट करने के लिए डेटा इज क्वांटिटेटिव पियर्सन कोरिलेशन, बिकॉज इट इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन, सो इट इज आल्सो नेम्ड एज पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट. किस तरह हम देखेंगे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को? Spearman and Kendall correlation coefficients are also there, but they are non-parametric measures. यानी अगर रैंकिंग होगी, अगर हमारे पास रैंकिंग डेटा है, यानी suppose if you provide the ranking of the students in your data, then we use the Spearman and Kendall correlation coefficients. तो नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स है, तो इस केस में हम स्पेयरमैन और केंडॉल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर करेंगे. सिंपली कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे मेजर करेंगे? SPSS फाइल में graph the data in a scatter plot to determine if there is a possible linear relationship between age and health score. Compute simple correlation coefficient and show whether relationship between age and health score is significant. ये तीन चीज हमें देखनी है कि एज और हेल्थ स्कोर के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोई है, कि एज और हेल्थ के बीच में क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, यानी कोरिलेशन कोई होता है कि एज के साथ हेल्थ स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है, इसके बीच में हमें कोरिलेशन चेक करना है. फर्स्ट यू हैव टू चेक, ओपन योर हेल्थ डेटा फाइल, सेलेक्ट ग्राफ, लेगेसी डायलॉग्स एंड स्कैटर डॉट. आप सिंपली क्लिक कर देंगे सिंपल स्कैटर इसको एंड क्लिक डिफाइन. डिफाइन में आप रखेंगे वाई एक्सिस पे हेल्थ स्कोर, एक्स एक्सिस पे एज ऑफ अ पर्सन. और नेक्स्ट हमें इस तरह से स्कैटर डायग्राम, यानी स्कैटर डायग्राम बेसिकली यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. लेकिन बेहतर कैसे होगा कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन करें. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे ऑब्टेन करेंगे? गो टू एनालाइज, go to correlate and go to bivariate, because your variable, two variables are there, click on bivariate. और यूनिवेरिएट कहते हैं सिंगल वेरिएबल को. दो वेरिएबल्स हैं आपके डेटा सेट में जिनको बीच में आपको कोरिलेशन चेक करना है. वन इज हेल्थ स्कोर एंड अदर इज एज. इन्हीं दोनों के बीच में आपको चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? मूव एज एंड हेल्थ स्कोर टू द वेरिएबल विंडो एंड अप्लाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट पियर्सन. ये बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है, तो बाय डिफॉल्ट चलिए हम देखते हैं इसको. नाउ चेक इट ऑन SPSS फाइल, go to analyze, then go to correlate, click on bivariate. What are the variables to check the correlation coefficient? Health score and age. Age और health score के बीच में आपको correlation coefficient find करना है. And you are interested in the Pearson correlation coefficient. It is by default, so you can, if it is not present here, just click on it. Pearson correlation, click on Pearson correlation coefficient, click on OK. अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं हेल्थ स्कोर और एज, हेल्थ स्कोर एंड एज ऑफ अ पर्सन. P value is -6.684, which is close to -0.7, यानी निगेटिव इंपैक्ट है, निगेटिव कोरिलेशन है. कोरिलेशन वैल्यू बेसिकली लाई करती है -1 to +1. इट इज क्लोज टू -1, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन. इफ इट इज क्लोज टू +1, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. यानी एज एंड हाइट एंड वेट, इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. यानी एज के साथ हाइट इंक्रीज करती है. हाइट एंड वेट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उसी तरह वेट भी बढ़ेगा. हाइट इंक्रीज करेगी, वेट भी इंक्रीज करेगा. बोथ वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, देन इट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. व्हेन वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. तो इसका मतलब ये है हेल्थ स्कोर और एज ऑफ अ पर्सन में -0.7 आ रहा है, यानी नेगेटिव कोरिलेशन है.
That means one increases. Yes. Any question? Okay. One increases, other decreases. Means as age of a person increases, health score decreases. और ये होता भी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ स्कोर भी कम होता चला जाता है, लोगों की हेल्थ खराब होती चली जाती है जैसे जैसे हेल्थ इंक्रीज एज इंक्रीज करती है. तो हेयर इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. तो आप इसके थ्रू डायरेक्टली देख सकते हैं कि हेल्थ स्कोर एंड एज ऑफ अ पर्सन शोज दैट -0.684. तो इस तरह हम कोरिलेशन भी चेक कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये अभी मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीजें देखिए आ भी रही है, वही रिजल्ट मैंने बताया. नाउ हाउ टू अप्लाई द कंपेयरिंग मीन्स यूजिंग वन वे अनोवा. वन वे अनोवा कब हम अप्लाई कर पाते हैं? वन वे अनोवा कब हम यूज करेंगे? वन वे अनोवा तब हम यूज करेंगे जब अनोवा क्या होता है? व्हाट इज अनोवा? अनोवा इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. यानी इफ यू वांट टू चेक द significant difference between two or more than two groups, more than two groups, क्योंकि two groups के लिए तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ग्रुप से ज्यादा होगा तब आप एनोवा परफॉर्म करेंगे. यानी इफ यू वांट टू चेक द हेल्थ स्कोर मोर देन टू ग्रुप्स देन यू कैन यूज अनोवा. और दो ग्रुप्स के लिए हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, मोर देन टू ग्रुप्स के लिए अनोवा. अनोवा इज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. सिंगल फैक्टर यूज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं वन वे अनोवा. वन वे अनोवा. सपोज एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, इन डिफरेंस टू हेल्थ डेटा फाइल, सपोज अ रिसर्चर विश टू टेस्ट इज देयर एनी डिफरेंस इन द मीन हेल्थ स्कोर ऑफ अ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट इनकम ग्रुप्स. अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे पास डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं, कितने इनकम ग्रुप थे जो हमने कल देखा? उसमें 4 इनकम ग्रुप थे, 0, 1, 2, 3, 4. यानी बिलो 2000, 2000 to 4000, 4000 to 8000, 8000 एंड अबव. 4 ग्रुप्स थे. तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स थे. इज देयर एनी डिफरेंस? यानी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग उनके हेल्थ स्कोर में कोई फर्क आ रहा है? अगर सपोज कहते हैं कि नहीं, सिर्फ दो ग्रुप के बीच में आप चेक करिए, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ स्कोर, तब तो आप टी टेस्ट अप्लाई कर लेते. बट हियर 4 ग्रुप्स आर देयर इन योर मंथली इनकम, और आप देख रहे हैं 4 ग्रुप्स हैं, then we can use it ANOVA, one way ANOVA. because one way ANOVA, because health score is the single factor. अगर दो फैक्टर होंगे तब हम यूज करेंगे टू वे ANOVA. तो वन वे ANOVA के लिए हमारी हाइपोथेसिस होगी H नॉट म्यू नॉट इक्वल टू μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3. म्यू नॉट मतलब ग्रुप मीन हेल्थ स्कोर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जिसको आप जीरो, जिसको आपने कहा था, यानी हेल्थ स्कोर जीरो ग्रुप का बिलो 2000 रुपीज जिनकी मंथली इनकम थी. यानी आप कह रहे हैं कि ये जो चारों ग्रुप्स हैं, μ0, μ1, μ2, μ3, इनमें कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर. यानी एवरेज हेल्थ स्कोर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इनकम का. और अल्टरनेट क्या है? नहीं, एटलीस्ट वन इज डिफरेंट, कि नहीं कम से कम एक जो है उनमें से डिफरेंट है. तो अब हमें इसे चेक करना है. चेक कैसे करेंगे? फर्स्ट वी शुड चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ आवर डेटा. तो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे अपने डेटा की. सेम नॉर्मेलिटी के लिए मैंने बताया, नॉर्मेलिटी के लिए गो टू स्प्लिट फाइल. स्प्लिट फाइल में जाएंगे. स्प्लिट फाइल के बाद आप जो आउटपुट है, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप, उसको आप मंथली इनकम को आप उस बॉक्स में ले आएंगे. क्लिक ऑन ओके. ओके कर देंगे. तब आप सेम टेस्ट अप्लाई करेंगे नॉर्मेलिटी के लिए. go to analyze, go to descriptive, then go to explore and click on normality plot with test and check the KS test and Shaprow-Wilks test. If p value is greater than 0.05 then data will be normal. तो अगर KS अगर आपका ANOVA टेस्ट नॉर्मल फॉलो नहीं कर रहा है तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर लीजिए. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अगर नॉर्मल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइकर्ट स्केल में बेसिकली नॉर्मल फॉलो नहीं करता है, तो हम अल्टरनेट टेस्ट यूज करते हैं, यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तब हम उसमें क्रुस्कर वॉलिस एच टेस्ट यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पर अनोवा हम देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारा डेटा फॉलो कर रहा है नॉर्मल को. और फिर हम क्या करेंगे? गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन, गो टू वन वे अनोवा.
move health score into the dependent list and monthly into the factor list, क्योंकि monthly income के basis पर आपको health score चाहिए, तो factor box में it is come in the monthly income. Then apply post hoc test to key and check the homogeneity of variance, जिसको हम लेवेने टेस्ट कह रहे हैं. इसमें भी हम homogeneity of variance लेवेने टेस्ट चेक करेंगे. Then click on OK. देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे. Go to the file, go to analyze. हम देख चुके हैं कि हमारा मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्थ स्कोर है वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है नॉर्मल. अगर नॉर्मल फॉलो कर रहा है तब हम कैसे अप्लाई करेंगे. गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन, गो टू वन वे अनोवा. कैसे? गो टू एनालाइज, go to compare mean, go to one way ANOVA, click on it, and then after that what is your dependent list? Health score is your variable of interest. What is your factor list? That is your monthly income. मैंने बताया था monthly income को बॉक्स में ले आइए. कंट्रास्ट इसमें जरूरत नहीं है आपको. पोस्ट हॉक टेस्ट, यानी अगर नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाती है, यानी जिसमें हम कह रहे थे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ स्कोर, अगर उनमें हम स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तब हम पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे, जिसको हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं, पोस्ट हॉक टेस्ट भी कहते हैं. यानी अब हम चेक करेंगे पेयर वाइज कंपैरिजन, विच वेरिएशन और विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जा रही है तब हमें पोस्ट हॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तब हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट और पोस्ट हॉक टेस्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास देयर आर सो मेनी टेस्ट आर देयर फॉर टू टेस्ट द पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन, बट वी यूज द टुकी टेस्ट. टुकी टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टुकी टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. अब देखिए, अब आपके पास आ रहा है हेल्थ स्कोर एनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप. ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.340, और ये जो वैल्यू आ रही है नोवा की ये है पी वैल्यू. पी वैल्यू आ रही है 0.340, यानी पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, दैट इज अल्फा. अगर पी वैल्यू ग्रेटर है अल्फा से तब हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, यानी एक्सेप्ट हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हेल्थ स्कोर पे कोई फर्क नहीं है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मंथली इनकम्स with their health score. यहाँ पर 0.340 आ रहा है, इसको हम एक्सेप्ट. सपोज करिए अगर रिजेक्ट हो जाती तब हम क्या करते? तब हम पोस्ट हॉक टेस्ट में देखते. ये जो पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन है ये ग्रुप वाइज कंपैरिजन है. बेलो 2000 मंथली इनकम 4 ग्रुप हमने बना रखे थे. बेलो 2000 का 2000 4000 से, बेलो 2000 का 4000 8000 से, बेलो 2000 का 8000 10000. क्योंकि यहाँ पे सिंस हियर द हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सारी हाइपोथेसिस यहाँ एक्सेप्ट होंगी. अगर यहाँ रिजेक्ट हो जाती तब यहाँ पर वेरिएशन आपको दिखता कि हमारी कौन सा, विच फैक्टर और विच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. Next thing is simple linear regression analysis. Simple linear regression analysis. Regression analysis. What is regression analysis? Regression analysis basically used to check the when we use regression is used to predict the dependent variable on the basis of several independent variable. यानी अगर आपके पास सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब हम अप्लाई करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन. और अगर हमारे पास if we have more than 2 independent variables, अगर हमारे पास सपोज अगर हमें पता करना है वेट एंड हेल्थ स्कोर या एक्सपेंडिचर, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर एंड मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें लीनियर रिलेशनशिप शो करनी है, तो रिग्रेशन बेसिकली regression and correlation shows the strength and direction of the between two variables. Linear regression show how much
these two variables are connected, what is the impact of 1 unit increase in a particular unit and what is the impact on the particular dependent variable. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे. if we have one is dependent variable, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तब हम बेसिकली चेक करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. किस तरह हम चेक कर सकते हैं? फर्स्ट वी हैव please refer to your health data file and perform the following. Measure the degree of attachment of health score, age and health score variable and check whether linear regression analysis is possible or not. क्योंकि जिसका हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस चेक करना चाह रहे हैं उनमें देखें कि आपस में कोरिलेशन है भी या नहीं. और हम चेक कर चुके हैं एज और हेल्थ स्कोर आपस में कोरिलेटेड हैं स्ट्रांगली. वन इंक्रीज करता है, अदर डिक्रीज करता है. तो सबसे पहले हम गो टू एनालाइज, go to correlate, then go to bivariate, move age and health score in the variable window and go to Pearson. यानी सबसे पहले हम correlation check करेंगे, then after that we apply regression analysis. Regression apply करेंगे, go to analyze, go to regression, then click on linear because single independent और single dependent variable है. फिर उसके बाद आप रिग्रेशन के बाद लीनियर इस तरह का बॉक्स आएगा आपके पास, क्लिक ऑन लीनियर. देन आफ्टर दैट क्लिक जब लीनियर पे करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ स्कोर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एज ऑफ अ पर्सन. यानी एज ऑफ अ पर्सन जैसे जैसे बदल रही है हेल्थ स्कोर पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो रिस्पॉन्स वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हेल्थ स्कोर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ऑफ अ पर्सन है. उसमें क्लिक करेंगे, देन गो टू एस्टिमेट कॉन्फिडेंस एंड गो टू मॉडल फिट एंड देन कंटिन्यू. ओके, एंड नो नीड टू क्लिक ऑन इट, just click on normal probability plots, click on unstandardized and then you have get the result. किस तरह हमें result मिलेगा, just see on the SPSS window. We have already checked this on correlation, age और age and health score में हम already correlation check कर चुके हैं, तो हमें further उसे check करने की जरूरत नहीं है. Go to analyze, गो टू रिग्रेशन, गो टू लीनियर. आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है हेल्थ स्कोर, क्लिक कर दीजिए. हेल्थ स्कोर डिपेंडेंट, और किसका देखना है कि एज के साथ हेल्थ स्कोर पे क्या, तो एज विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लिक ऑन स्टैटिस्टिक, आप इंटरेस्टेड हैं एस्टिमेट्स में और कॉन्फिडेंस इंटरवल में और मॉडल फिट में. क्लिक ऑन कंटिन्यू. प्लॉट्स में इंटरेस्टेड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स, कंटिन्यू. सेव में आप अनस्टैंडर्डाइज पे क्लिक कर दीजिए, नो नीड टू चेंज इट. क्लिक ऑन ऑप्शंस, बाय डिफॉल्ट 0.05, क्लिक ओके. और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो एनोवा लास्ट में जो टेबल आपको मिलेगी, दैट टेबल, दैट इज दिस वन. दिस टेबल मॉडल समरी एडजस्टेड आर स्क्वायर इज adjusted square is 0.44. so this is hypothetical data. यानी आर स्क्वायर 0.684 आ रहा है. आर स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर हम इसकी वो देखें, इंटरप्रिटेशन देखें, तो हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. सपोज हमें इस तरह से मॉडल का इंटरप्रिटेशन मिला, मॉडल समरी यहाँ पर आ रही है, आर की वैल्यू 0.865, आर स्क्वायर इज 0.748, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.722. यानी इफ यू इंक्रीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है. तो आर स्क्वायर बेसिकली आपको बताता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी 0.748 बता रहा है आर स्क्वायर, यानी 74.8% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल. और जैसे जैसे 100% की तरफ मूव करता है हम मॉडल कहते हैं अच्छा है. 60% पे भी कह सकते हैं कि क्योंकि रियल डेटा हमारे पास आता है तो प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं. तो 50% से कम पे इट इज नॉट गुड फॉर द रिग्रेशन एनालिसिस, फॉर द मॉडलिंग. बेटर कब है कि 0.6 से अबव हो, यानी 60%. आप इसमें देखें आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 0.748. तो 74.8% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन बाय द मॉडल. तो 100% के क्लोज जितनी भी मॉडल वैल्यूज होंगी, यानी सॉरी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा फिट हुआ है. तो
इस तरह हम कह सकते हैं कि 74.8% variability explained by the model means age correctly explained the health score and in terms of 74.8%. तो इस तरह से हम regression analysis को show कर सकते हैं. So this is the last topic of our lecture, and thank you so much. And it is very difficult for me to cover all these techniques in 2 days because it is a vast program for me to cover all these things. I hope everyone enjoy, and we will try my best to cover some more times. It will take more times to cover all the important techniques. So I will try to cover the important techniques which are very useful in your basic research. Thank you. Is any query? Very much for this wonderful session. If anybody have a queries, can you please please? Sir, someone asked All me. please. Someone asked me in future I have any query regarding SPSS, then I contact you. Yes, sure. Why not? I am Dr. Mohammad Yes, Azam Khan please from open your Department camera. of Statistics. You can contact me. You can mail me. I will try my best to give you I will give you answer within the given time, and sometimes it may be late, but I will respond you. You can contact me Yes. after the program. Is it possible? So can you open your camera and ask anything? And can you give your views and ideas regarding this workshop? We will welcome your valuable feedback and suggestion. Anyone can ask and discussion the last movement. I think there is no response. Okay, thank you very much for coming this wonderful session. Kindly provide your mail, sir. Yes, sir. Kindly provide your mail. Okay, thank you very much for everyone. Dear participants, I would like to take a moment to express my sincere gratitude to everyone who made this quantitative data analysis using SPS workshop possible. Firstly, I want to thank the resource person Dr. Mohammad Azam Khan, Assistant Professor, AIMU Aligarh, for sharing their knowledge and expertise with us. They have been encouraging and providing excellent support throughout the training, made it enjoyable and fruitful learning experience. My fellow trainees, thank you for your participation, engagement, and willingness to learn alongside me. Your questions, comments, and feedback have been instrumental in creating a collaborative, dynamic, and learning environment. Once again, thank you all for your contribution to this training program. I look forward to applying what I have learned and to continue to collaborate with all in the future. Dear participants, once again, I am sorry for technical problem occurred in the first day. So we will, after that, I am request our resource person, Dr. Mohammad Azam, kindly give your concluding remark for this workshop. Yes, sir. Thank you so much. And first of all, I would like to, I want to say that I am extremely sorry on the first day which was happened, and sometimes it may occur and you don't have any idea because it is online session, so there is a technical issues are there. It may be happen, but thank you for your patience and cooperating. I will try my best to give you the maximum knowledge which is required in your basic research. I'm not saying that I will give you 100%, but I will try my best to give you that at least some knowledge you are comfortable with SPSS. And next time I will give you some more important and useful things. And I'm also in the learning stage, and your opinions, your
your suggestions, always improvement, because there is a chance of improvement. So thank you, everyone. Thank you so much. Thank you so much considering me as a resource person. Thank you. Okay. Hariprala Sai Sri Varsha. Yes, ma'am. We will conduct more workshops regarding this as well as other. If you want to say something, can you open your camera? Anyone want to say something regarding this workshop? What is your experience regarding this workshop? And yes. Thank you, sir. Thank you for valuable information. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, Thank you. sir, please, sir, make sure give more information about SAPPS. Kindly give Okay. your introduction, ma'am. Where are you from? I am from Acharya Nagarjuna University, Guntur. Oh. Okay. Anyone Okay. more? Thank you, madam. Thank you for giving your valuable feedback regarding this. And anyone more want to ask something and say something regarding this workshop? You can open your camera and speak. Yeah, hello, sir. Chinna Yes. Radium. Yes, sir. Yeah, hi, sir. My name is Chindedu and I'm from Acharya Nagarjuna University. I'm Okay. pursuing my MSc Statistics. Okay. At present, I'm in my final year. Yes, yes. Actually, at present, I'm looking for any data science role. So this session maybe helped me so much a lot. Yeah, I will. Thank you. Thank you, sir. Hopefully you will enjoy. Thank you, Sir, sir. could Thank you please Anyone more? send PPT, sir, for this topic? Yes. I will. Okay. Yeah, Okay. Okay. I will send you. I will send you recording on the all session. Thank Okay. you, sir. And anyone more? I think anyone want to say something? Okay, Alina Saman, Supriya Chandolu, Esther Rani Siliguri, Rakesh Sote, Anaga Raju, Karuna Kokar, Evan Chand, and Tony. Anyone? Okay, sir. Okay. I think We should. we should end it. Actually, the time Okay. is over. Okay, dear participant, I will send you the certificate on your register email as soon as possible tomorrow, by tomorrow. So thank you once again. Thank you very much, and thank you very much, sir, Thank you. for Thank you. Thank you, everyone. such type of the workshop. Thank you, everyone. Thank Bye. you.